Welcome in the national classes. जो तो क्लास 9 का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन चैप्टर कर रहे हैं, जो CBSE और PSEB दोनों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है। इस वीडियो को देखिए, इससे फ़ायदा उठाइए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एक्सीलरेशन, त्वरण क्या है। तो इसका डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। The rate of change in velocity is called acceleration. The rate of change in velocity is called acceleration. Acceleration is vector quantity. Acceleration is a vector quantity. बताया गया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? A physical quantity which has both magnitude and direction. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. So acceleration has both magnitude and direction. Therefore, acceleration is a vector quantity. हम लोग acceleration का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर acceleration. Expression for acceleration, that is a is equal to v minus u by t होता है। इसी को हम लोग डिड्यूस करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी of a body, that is u. Final velocity of that body is equal to v. Time taken is equal to t. Acceleration is equal to a. Then change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. Change in velocity, that is v minus u, and change in velocity by time, that is v minus u by t. Change in velocity by time, that is the rate of change in velocity. The rate of change in velocity, that is v minus u by t. और डिफिनीशन है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का सिंबल ए है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हुआ ए इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। डिफिनीशन है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी
we have to find the expression for the acceleration a is equal to v minus u by t, where let the initial velocity of a body, that is u, and final velocity of that body is v, and time taken, that is t, and acceleration is equal to a. Therefore change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Change in velocity by time, that is v minus u by t. अब इसमें हम लोग दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई टी टू बोथ साइड्स वी हैव चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम एंड वेक्टर एंड v minus u by t, and change in velocity by time, that is called the rate of change in velocity, that is v minus u by t. And the rate of change in velocity, from definition, what is the definition of the acceleration? We have the rate of change in velocity, that is called acceleration. Therefore putting the symbol of acceleration a, we have a is equal to v minus u by t, and this is the expression for acceleration. और इस acceleration को अगर हम लोग आगे डेवलप करते हैं तो v minus u by t, therefore at may be written as v minus u, since v is equal to u plus at. v is equal to u plus at, ये v is equal to u plus at एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त होता है, और ये पहला हो गया एक्सप्रेशन a is equal to v minus u by t, एंड इसी से हम लोग अगर डेवलप किए तो a इंटू टी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, दैट इज v minus u. Therefore at is equal to हुआ v minus u and v is equal to u plus at. इससे हम लोग v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t इसका टाइम है. Therefore 1 2 3 4 इस चारों में रिलेशन है. इस चारों के थ्रू हम लोग दो सब्जेक्ट यहाँ बनाया गया, v सब्जेक्ट हुआ तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस चारों में से एनी थ्री गिवन रहेगा. अब फोर्थ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसे u a और t गिवन रहेगा तो इससे आधार पर हम लोग v निकाल लेंगे. v u और t गिवन रहेगा, इस आधार पर हम लोग इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, इससे u t है ना, सब चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी से u इज इक्वल टू हो जाएगा u इज इक्वल टू v माइनस ए टी, यह थर्ड इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. इसी से t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, यह फोर्थ इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं. फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा. अब हम लोग एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट देखेंगे एंड सीजीएस यूनिट, दिस इज ऐसा यूनिट एंड दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. ऐसा यूनिट एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and that is written as meter into second to the power minus 2, and CGS unit that is centimeter per second square, and that is equal to cm into second to the power minus 2. एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड टू पावर माइनस 2, एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे ऐसे लिख सकते हैं cm इंटू सेकेंड टू पावर माइनस 2. इस तरह से एक्सीलरेशन का हमें ये दोनों यूनिट हमें प्राप्त हो जाता है, और इसे फॉर्मूला प्राप्त हुआ एक्सीलरेशन के लिए a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल इसका हो गया. लेट क्वेश्चन लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी दैट इज मानते हैं लेट 20 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी v दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया इसका सपोज 5 सेकेंड. देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1. Acceleration is equal to 1. Let initial velocity of a body that is 20 meter per second and final velocity 30 meter per second, and time taken by that body that is 5 second. And what is acceleration of this body? We know acceleration a is equal to v minus u by t. Acceleration a is equal to क्या होता है v minus u by
t होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v 30 माइनस u 20 एंड बाई टाइम t 5, दैट इज 10/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन निकला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इन द केस ऑफ एक्सीलरेशन, case of acceleration, in the case of acceleration, final velocity v is greater than initial velocity। एक्सीलरेशन के केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होना चाहिए। v और u में v इज ग्रेटर देन u होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मानदंड। रिटार्डेशन का डिफिनीशन है द नेगेटिव एक्सीलरेशन, the negative acceleration is called retardation। The negative acceleration is called retardation। The negative acceleration is called retardation। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। It is also a vector quantity। Retardation is a vector quantity। Retardation is a vector quantity और रिटार्डेशन वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट रिटार्डेशन ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर एज सीजीएस यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। In the case of retardation, initial velocity u is greater than final velocity v। Initial velocity u is greater than final velocity v। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें ब्रेक लगाया गया तो फाइनल वेलोसिटी इसका घट गया और वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और टाइमिंग का ड्यूरेशन हो गया 10 सेकेंड। मीन्स 10 सेकेंड में किसी कार का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से घटकर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 10 सेकेंड में। तब कहा जाएगा व्हाट इज इट्स रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन तो हम लोग इसको एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट इज इट, ए इज इक्वल टू व्हाट। इसका सॉल्यूशन वी हैव ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू रखेंगे हम लोग 20, u का वैल्यू 40 एंड टाइम कितना है 10 सेकेंड टाइम, दैट इज -20 बाई दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट इसको बढ़ाते हैं, दैट इज -a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and this negative acceleration is called retardation. Therefore here retardation may be written as 2 meter per second square. This is retardation. Retardation है, तो retardation में negative acceleration is called retardation, and retardation is also a vector quantity. रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द केस ऑफ रिटार्डेशन इनिशियल वेलोसिटी u इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। u क्या है इसमें, u इनिशियल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, वेयर एज v इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलो u इनिशियल वेलोसिटी है, अभी फाइनल वेलोसिटी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन बाय दैट वेरी बॉडी इज 10 सेकेंड। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. a मीन्स एक्सीलरेशन, देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, एंड v इज इक्वल टू 20, u is equal to 40, and time is 10, then minus 20, 20 minus 40, that is minus 20 by 10, that is minus 2 meter per second square, and this is acceleration, a is equal to minus 2 meter per second square. Therefore minus a is equal to 2 meter per second square, and minus a, that is negative acceleration, and that is called retardation. Therefore retardation is 2 meter पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण। if the change in velocity of a body, if the change in velocity of a body is equal, if the change in velocity of a body is equal in equal intervals of time, in equal intervals of time, how small may be the intervals of time are, the intervals of times are, if the change in velocity of a body is equal in equal intervals of time, how small may be the intervals of time are, then that body is said to be in uniform acceleration. Then that body is said to be in uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का यह डिफिनीशन हुआ। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल या रिमेन्स द सेम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ स्मॉल मे बी द इंटरवल्स ऑफ टाइम्स आर, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समय के समान अंतरालों में चाहे वे अंतराल कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, किसी वस्तु के वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन यदि समान हो, तब उसके इस चाल को, उसके एक्सीलरेशन को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं।
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं जहाँ पर वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम होगा, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। इसको लेकर हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। वेलोसिटी अगर 10 है, टाइम इसका है 10 सेकेंड। वेलोसिटी 20 है, टाइम है 20। वेलोसिटी 30 है ये 30, 40 है, इस पर है ये 40, है ना। और इसको लेकर हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया गया है, टाइम इन सेकेंड, एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम को सेकेंड में लिया गया है, और वाई एक्सिस को वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम 10, 20, 30, 50, यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। जब वेलोसिटी टाइम 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी भी 10 है। अब इसको लेकर हम लोग पॉइंट प्राप्त किए, ये हुआ 20 पर हो गया 20, 30 पर हो गया 40 एंड 40 पर 40। और इसको लेकर के हम लोग सबको ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त हो जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? डेफिनेशन है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल in equal intervals of time, however small may be the intervals of times are, then that body is said to be in uniform acceleration। इसका टेबल एक तैयार किया गया है, और एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया गया मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को सेकेंड में। इसको लेकर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ में प्राप्त होता है। यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम लोग देखेंगे ऑन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म था, अभी हो जाएगा अन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण, यह हो जाएगा असमान त्वरण। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज unequal in equal intervals of time, change in velocity of the body is unequal in equal intervals of time, however small may be the intervals of times are, then that body is said to be in ununiform acceleration। If the change in velocity of a body is unequal in equal intervals of time, change in velocity of a body is unequal in equal intervals of time,
how small may be the intervals of times are, then that body is said to be अनयूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किए। तो चेंज इन वेलोसिटी ये अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये 10 था तो ये हो जाएगा 15 है ना, और ये 30, ठीक है 30, ये हो जाएगा 35, ठीक है। और इसको लेकर हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ग्राफ अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था वह ग्राफ अब चेंज कर जाएगा, और चेंज करने के बाद यह ग्राफ हमारा ऐसे तैयार होगा। जैसे देखो टाइम 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है इसका 10 पर 10 है। टाइम 10 सेकेंड पर वेलोसिटी 15 है, 10 और 20 पर 15, ये 20 रहा और ये 15 के लिए 20 और 15, और ये रहा 10 और 10 के लिए, ठीक है। उसके बाद जब टाइम 30 सेकेंड है तब वेलोसिटी इसका हो गया है 30। जब ये 30 है तो 30 के लिए अब यहाँ पर आ जाएगा, दोनों 30 है। एंड टाइम जब 40 सेकेंड है तो वेलोसिटी ओनली 35 हुआ है, ये 40 ऐसे 35, 40 एंड 35, और इस सब को एक दूसरे से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है कर्व्ड लाइन ग्राफ, कर्व्ड लाइन, यह ग्राफ हमारा कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है। तो ये अनयूनिफॉर्म है ना, अनयूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हुआ, असमान त्वरण के लिए। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है ना इज अनइक्वल in equal intervals of time, how small may be the intervals of times are, then that body is said to be in अनयूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसका एक टेबल तैयार किया गया, ये सारणी इसका, और इसको एक्स एक्सिस पर टाइमिंग को और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया गया और लेकर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, जो ग्राफ कर्व लाइन ग्राफ में प्राप्त होता है। और यह ग्राफ अनयूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये टॉपिक हुआ, और इसको आप लोग पढ़िए और इसको समझिए। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, कहीं पर कोई डाउट होता है, तो इसे आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए आपको लिंक के जरिए आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।